Assalamu alaikum students. I am teaching maths for class 4. The unit is factors and multiples. Today I'll make you understand question number 6, 7 and 8 of the first exercise of this unit. Okay. The question is, which of the following numbers are divisible by 5? As you remember student that we solve this question by using divisibility rules. Divisibility rules that I told you in the first class. So, in this question you have to find out that which of the following numbers are divisible by 5. Divisible by means completely divide. यानी कि वो नंबर जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए और कोई रिमाइंडर आखिर में ना बचे. Okay, so the first one is 2900. If you remember the rules of divisibility, that if any number that has 0 and 5 at its unit place, so it is divisible by 5. So the number that we have here is 2900. And if you notice, so at its unit place there is a 0. So it means that this is divisible by 5. So the answer is 2900 is divisible by 5 because it has 0 at its unit place. Same like that, you have to solve question number B, C and D. Now question number 8. Which of the following numbers are divisible by 10? Okay, same like question number 6, you have to solve question number 7. In this question, you have to find out which of the following numbers are divisible by 10. With the help of the divisibility rule, you will solve this question. Okay, if you remember the rule that if any number that has 0 at its unit place, so it is divisible by 10. So just you have to look at the digit that at its unit place and then solve the question. Okay, now look at question number 8. Use the rules of divisibility to check whether each given number is divisible by 2, 3, 5 or 10. Write yes or no. Okay student, here is a table given. In this table there are some numbers and in front of those numbers there are 4 columns. You have to write yes or no in front of each number and in each column. ओके इस क्वेश्चन में आपने डिविजिबिलिटी रूल्स को यूज़ करते हुए यस और नो लिखना है. यहाँ कुछ नंबर्स दिए गए हैं. नंबर्स के सामने जो है वो 4 कॉलम है. पहले कॉलम में ऊपर 2 लिखा है, दूसरे में 3, तीसरे में 5 और चौथे में 10. ओके, अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद हैं तो उनको ही इस्तेमाल करते हुए आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है. सबसे पहले यहाँ जो नंबर दिया गया है दैट इज़ 1872. पहले एग्जाम्पल जो है वो आपको सॉल्व करके बताई हुई है. इसके सामने 2 के कॉलम में लिखा है यस. सो इट मीन्स कि 1872 जो है वो 2 से डिविजिबल है. डिविजिबल मीन्स कम्प्लीटली डिवाइड होना, यानी कि आखिर में कोई रिमाइंडर ना बचना. सो 1872 जो है वो 2 से डिविजिबल है, इसीलिए 2 के कॉलम में यस लिखा है. अगर आपको रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी याद है तो फर्स्ट रूल था इफ़ अ नंबर हैज़ 2, 4, 6, 8 and 0 at its unit place, so it is divisible by
2, यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 2 मौजूद हो तो वो 2 से डिविजिबल है। तो यहाँ पर पहला जो नंबर है उसके यूनिट प्लेस पर 2 मौजूद है, तो इसीलिए 2 के कॉलम में यस लिखा है। नेक्स्ट देखिए 3 का कॉलम है और यहाँ पर भी 1872 के सामने यस लिखा है। So, इसका मतलब ये हुआ कि 1872 जो है वो 3 से डिविजिबल हो सकता है। ओके, इफ़ यू रिमेंबर द रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी फॉर 3, if we add the digit of a number and the sum of that number is divisible by 3, so it means the original number is also divisible by 3। मीन्स कि अगर हम 1872 को के जो डिजिट्स हैं उनको ऐड करें और ऐड करने से जो आंसर है वो 3 से डिवाइड हो सकता है कम्प्लीटली, तो इसका मतलब जो है वो ओरिजिनल नंबर यानी कि 1872 भी जो है वो डिवाइड हो सकता है। तो सबसे पहले जो है वो हम इन नंबर्स को ऐड करके देखेंगे। 1 + 8 + 7 + 2, सो व्हाट वी गेट 18। So is 18 divisible by 3? Yes, 18 is divisible by 3. So it means the original number 1872 is also divisible by 3. So that's why there is written yes in the column of 3. Okay, now look at the next one. अब जो नेक्स्ट कॉलम है जहाँ पर 5 लिखा है, उस कॉलम में 1872 के सामने लिखा है नो। नो का मतलब कि ये जो है वो 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? 5 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल हमने पढ़ा था वो था इफ़ अ नंबर हैज़ 0 और 5 एट इट्स यूनिट प्लेस सो इट इज़ डिविजिबल बाय 5। यानी कि अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 5 या 0 मौजूद हो तो वो 5 से डिविजिबल हो सकता है। लेकिन यहाँ जो नंबर दिया गया है उसके यूनिट प्लेस पर 2 मौजूद है, सो इट मीन्स ये 5 से डिविजिबल नहीं हो सकता। दैट्स वाई हेयर इज़ रिटन नो। ओके, नाउ लुक एट द लास्ट कॉलम। लास्ट कॉलम में भी जहाँ पर 10 है वहाँ पर नो लिखा है 1872 के सामने। ओके, तो 10 के लिए जो डिविजिबिलिटी रूल था वो था इफ़ अ नंबर हैज़ 0 एट इट्स यूनिट प्लेस सो इट इज़ डिविजिबल बाय 10। यानी कि अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पर 0 मौजूद होगा तो वो 10 से डिविजिबल है, जबकि यहाँ जो नंबर मौजूद है उसकी यूनिट प्लेस पर 2 मौजूद है। सो इट मीन्स कि 10 से जो है वो डिविजिबल नहीं हो सकता, इसीलिए यहाँ पर नो लिखा है। अब इसी तरह डिविजिबिलिटी रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आपने बाकी के टेबल को कंप्लीट करना है। यानी कि जैसे यहाँ पर जो नेक्स्ट नंबर दिया गया है वो है 53,250। तो अगर अब आप ये देखेंगे कि ये 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो आप इसके यूनिट प्लेस पर मौजूद नंबर को देखेंगे। ओके, इफ़ यू रिमेंबर, तो 2 के लिए डिविजिबिलिटी रूल था कि अगर नंबर के यूनिट प्लेस पर 0, 2, 4, 6, 8 मौजूद होगा तो वो 2 से डिविजिबल है, और यहाँ पर जो है वो 0 मौजूद है, तो इट मीन्स आप यहाँ पर लिख दोगे यस। सो सेम लाइक दैट आपने इस पूरे टेबल को कंप्लीट करना है। ओके ओके स्टूडेंट्स, सो टुडे आई मेड यू अंडरस्टैंड क्वेश्चन नंबर 6, 7 and 8. Now practice these questions. In the next class we will solve the next exercise. Thank you.